فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت اگر کسی کو دوں گا تو غوث الاعظم کو میں دوں گا۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں جتنے مریدین ہیں میں سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب سلسلہ با سلسلہ جب اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تاج الشریعہ تمہاری باری ہے، تم اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ اہل سنت والجماعت ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں۔ تو اگر سنی مسلمان ہوتے غیر عقیدہ ہو جاتے تو سمجھ لو ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ نارے جہنم ہو جاتا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خواجہ غریب نواز کی مہربانی ہے جو ہم لوگ کو خواجہ غریب نواز کے کلمہ پڑھے مگر سنی بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو پوری دنیا میں آج دیکھیے، آج کی تاریخ میں تاج الشریعہ کا جشن ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اصالہ ثواب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے رہے پوری زندگی، تاج الشریعہ کہتے رہے لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے رہے زندگی میں واجب نہیں ہے، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے رہے زندگی میں سنتیں نہیں ہے، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے رہے زندگی بھر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میرے پیر و مرشد حشر میں تو دور کی بات ہے، دنیا میں میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو میں تمہارا مرید سے نام کاٹ دوں گا۔ تاج الشریعہ نے اس بات بھی فرمایا، یہاں تک کہ انتقال سے پہلے کی بات ہے، انہیں جب خبر ہو گئی کہ ہماری رحالت وصال کا ٹائم ہونے والا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے جتنے مریدین ہیں میرے تصویر اگر میرا فوٹو کسی نے رکھا ہے تو جلد سے جلد اس کو ڈیلیٹ کر دے، نہیں تو میں اس کو مرید سے خارج کر دوں گا۔ تو یہ ہے شریعت والا پیر، یہ ہے اللہ والا، یہ ہے کامل ولی کی پہچان۔ اگر مرید شریعت میں ہے، اگر پیر کا مرید کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو پیر کے لیے ضروری ہے مرید کو آگاہ کرے۔ کیا ہے؟ مرید کو آگاہ کرے۔ اگر مرید گناہ کر رہا ہے، مرید نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو پیر کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھاوے، عمل کراوے، اس کو سمجھاوے، آگاہ کراوے، اللہ کا ڈر بتاوے اور اس کو اللہ سے لو لگانے کا طریقہ بتا دے۔ یہی اولیاء کامل کی پہچان ہے۔ آج تو ہم بہت سارے پیروں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم وہی پیر ہمارے آپ کا سر کا تاج ہے جو بادشاہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں بہت ہے میرے بھائی، تاج الشریعہ سے بھی بڑھ کے بھی پیر مرشید ہیں، لیکن آج کی جگت میں، آج کی سنیت کی جگت میں تاج الشریعہ کا لقب عام جاہل ان پڑھوں نے یہ لقب نہیں دیا ہے، جیسا کہ مجاہد ملت کا لقب عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اچھے عالم علماء پیر حضرات اولیاء کرام بیٹھ کے انہوں نے لقب دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ خوبیاں، ساری خوبیاں موجود تھی۔ تو تاج الشریعہ جو آج لقب ملا ہمارے پیر و مرشید کا، یہ کوئی جاہل ان پڑھ کا لقب نہیں ہے، اچھے محدث کا لقب ہے۔ کہ آج کی دنیا میں تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعت، شریعت کے تاج۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان عقیدہ ہے، سنی اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ پیر ہے، ہم سر کا تاج ہے، اور جو بادشاہ پیر نہیں ہے ہمارا آپ کا سر کا تاج نہیں ہے تو پھر گمراہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ کے اندر بہت ساری ایسی جو کمزوری بات اور کیا کہتے ہیں گمراہ پن بات ہے کہ اگر ہم کسی سے بیعت ہو جاتے ہیں، باپ تمہارا ایک پیر تمہارا ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا کہ نہیں؟ بولو۔ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے دل کا جو کنٹرول کا پاور، اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا ہے؟ کسی کا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب میں عورتوں کو مرید کراتا تھا پردہ کے ساتھ کراتا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ یقین کا فرمان ہے، رسول خدا کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا مقام ہے، اگر ہم چاہتے تو میں عورت کو بے پردہ مرید کرا سکتا تھا، اللہ نے وہ پاور دیا تھا، مگر پھر بھی مشکات شریف کی حدیث میں میرے سرکار فرماتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے پردے کے آڑ میں رہ کے عورتوں سے بیعت کیا۔ تو جو اللہ والا ہے، جو بادشاہ پیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ضرور وہ اپنائے گا، اور جو ان سے الگ رہے گا تو وہ اپنا پھر ایک دھندا کھولے گا،
नियम बनाएगा। क्यों? इसलिए कि आम आदमी पागल के दिमाग में, पागल की जिंदगी में वो हीरो बनने के लिए जमता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम बहुत तलाशो, पीर नहीं मिला है, लेकिन एक पीर मिला है, मिलने के बाद में तुम उससे बात कर लिए, तुम उससे उसके हाथ में बिक गए हो, अब कुछ दिन के बाद में खिदमत गुजरने के बाद में पता ही चल रहा है कि शरीयत का बरखिलाफ काम कर रहे हैं, नमाज का तो तवज्जो नहीं देते हैं, मस्जिद का कोई तवज्जो नहीं देते हैं, इस्लाम का कोई पाबंदी नहीं है। अगर तुमको खटका मालूम है, तुम बड़े बड़े आलिम से मशवरा करो, बड़े बड़े आलिम से मशवरा करने के बाद में वो शरीयत के वकील हैं, वो कानून बताएंगे। आलिम दीन कानून बनाने वाला नहीं है, आलिम दीन कानून को, बने हुए कानून को बताते हैं। बनाने वाला कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बने हुए कानून को आलिम दीन बताते हैं। किसी की बात की मजाल नहीं है कि शरीयत को कानून को बना दे, बनी हुए कानून को बताने वाला का नाम आलिम दीन है। वो आलिम दीन बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक, नबी ने इल्म के गज़ब की सारी बातों को बता दिया। कयामत से पहले जो होने वाली थी उसको मेरे नबी ने बताया, जो होने वाला है, जो हो रहा है उसको भी बताया है, और कयामत तक जो आने वाली बातें हैं उसको भी नबी जानते हैं, उसको भी नबी जानते हैं। नबी ने इल्म के जरिए पता लगा लिया कि कुछ ऐसे पीर होंगे जो मेरी आल में से कहलाएंगे, वो पीर कहलाएंगे, ओली की शक्ल में घूमेंगे, ऐसे ऐसे शक्ल होंगी। नबी ने फरमाया, अगर तुम गलती से, धोखा से, दुनिया का माना धोखा है, धोखा से तुम उसके हाथ में बिक गए हो, वादा कर चुके हो, वाबस्ता हो चुके हो, दामन से दामन जोड़ दिए हो, बाद में पता चल रहा है कि नबी की शरीयत का बरखिलाफ कर रहा है, नमाज की कोई तवज्जो नहीं है, फर्जुल्लाह से दूर रहता है, सुन्नतुल्लाह से दूर रहता है, वाजिबुल्लाह से हमेशा जिंदगी को दूर रखता है। नबी फरमाते हैं, तुम जल्दी तौबा कर, तौबा करने के बाद में कोई बाशरा पीर मिले तो बाशरा पीर की बारगाह में जाके अपने दामान को दामान से जोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया है, गौसुल आजम फरमाते हैं, तब गौसुल आजम का मेरा फैजान उसको नसीब होगा। और अगर नहीं हो रहा है, तुम वहीं पढ़ के रहोगे, मेरा बाप एक ही है, मेरा पीर एक ही है। ऐसा किसी हदीस में, कोई किताब की रिवायत में नहीं आई है कि हम पीर पकड़े हैं, पीर कितना भी गुमराह हो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये गलत बात है, आदमी को बकवास, आदमी को बहका जा रहा है। तो मेरे भाई अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ, न तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि एक जमाना ऐसा आने वाला है, पीर की शक्ल में शैतान आएगा, तुम्हारा ईमान हड़प कर लेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तो मेरा भाई एक बात देखिए, हम नमाज की तवज्जो नहीं करते हैं, हम मस्जिद की कदर नहीं करते हैं, मस्जिद सजाने की बात नहीं करते हैं, सुन्नत का कोई ध्यान नहीं है, फराज़ गुस्ल का कोई ध्यान नहीं है, वाजिबात का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर 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 में मस्त रहते हैं। गौसुल आज़म ने ऐसे आदमी के लिए लानत बरसाई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी के लिए बद्दुआ की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे आदमी का ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले मुरीद की पहचान ये है कि जब वो कोई बादशाह पीर से बैठो, उसके लिए दिल में सबसे पहले ठान ले कि अल्लाह वाले ये आ रहे हैं, पीर आ रहे हैं, पीर नमाज में पागल है, नमाज में मस्त है, शरीयत में डूबे हुए हैं। तो हमारा जिंदगी भी ऐसा होना चाहिए, हम भी इनसे मुरीद होके मस्जिद को आबाद करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सुन्नत पे चलेंगे, अपनी जिंदगी को हम अल्लाह उसके नबी के फरमान के मुताबिक ढालेंगे और अपने आप को यह पहचान दिलाएंगे कि जब मेरा पीरो मुर्शिद का नाम कहीं होगा तो मेरा सीना चौड़ा होगा, मेरी छाती चौड़ी होगी। आज की दुनिया में अगर ताजुश शरिया का मुरीद का कोई नाम लेता है, ताजुश शरिया की मोहब्बत में मुरीद का दिल उछल जाता है। क्या न मेरा पीरो मुर्शिद ऐसा वैसा नहीं है, पूरी जिंदगी में इनकलाब है कि जनाजा में जिसकी 3 करोड़ आदमी हुआ। तो ये भी एक फकर की बात है, हम लोग कहीं बोलते हैं हम ताजुश शरिया के मुरीद है। क्यों भाई? वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया था, वो जिंदगी उन्होंने दुनिया में गुजारा था जो हर पल सुन्नत नबी में गुजारा है, हर पल अल्लाह की याद में गुजारा है। तो मेरे भाई अगर हम लोग किसी पीर से वाबस्ता हैं तो हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है, अगर हमारे पीर में अगर वो सारी खामियां हैं तो हमारे लिए जरूरी है उसे तौबा करे, कोई बादशाह पीर से हम बैठ हो जाए। हम लोग ऐसे धोखा में हैं, ऐसे धोखा में आदमी कोई बात डरा देता है उसी में डूब जाते हैं। लेकिन उस आदमी से बोलो, तुम कभी नमाज का, वो आदमी जब डराया ऐसी बातों से, कभी वो डराया कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिद आबाद करो, नहीं तो अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा, जहन्नम में चलोगे। वो आदमी ये सारी बात नहीं बोलता है, वो बोलता है सिर्फ डरा के रखा है, बोले तुम जिसका मुरीद हो वही सही है। नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब को मैंने पढ़ा है, दास्तान ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली, मैंने पढ़ा है ख्वाजा गरीब नवाज 18 बुजुर्गाने दिन की बारगाह में दिन गुजारे हैं।
ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान है कि नहीं, बोलो। जितने हिंदुस्तान में औलिया है सबके सरबराह है कि नहीं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के लिए अल्लाह ने मुझे तो वो मकाम अता फरमाया था कि मैं 7 आसमान को देख रहा हूँ, तहस्सुस सरा को देख रहा हूँ, जमीन में क्या है देख रहा हूँ, दूसरा जमीन में क्या है मुझे मालूम है। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह की कुर्ब को, अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के लिए मैं अपनी जिंदगी में 18 आदमी औलिया अल्लाह की बारगाह में मैं पहुंचा। और आजकल के मुरीद बोलते हैं, तुम जिसका मुरीद हो, ताजुश शरिया का मुरीद हो, फला आदमी का ने मत जाना, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे आदमी से आप समझाइए, बोलिए, क्या वो ख्वाजा गरीब नवाज से बढ़ के हैं? ताजुश शरिया के ख्वाजा गरीब नवाज से बढ़ के हैं? मुजाहिद मिल्लत ख्वाजा गरीब से बढ़ के हैं? नहीं है। तो हमको उस बात देखना है, ख्वाजा गरीब नवाज से मेरे पीरो मुर्शिद की बात कट रही है या सिमट रही है या सेटिंग हो रही है। अगर हो रही है तो मेरे पीर मुर्शिद मेरे सर के ताज हैं। और अगर कट रही आला हज़रत के पल्ला में हमने डाल दिया कि मेरे पीर मुर्शिद की बात आला हज़रत के पल्ला में नहीं समा रही है, गिर रही है, हम उनको ठुकरा देंगे। आला हज़रत ने हमको एक पैगाम दिया, ताजुश शरिया के जरिए मेरे ताजुश शरिया में ये पैगाम दिया है। तो मेरे भाई, सबसे पहले जरूरी है, अगर आप मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब की बात है कि हम सुन्नी हैं। तो सुन्नी की पहचान क्या है? सबसे पहले ताजुश शरिया ने फरमाया, नमाज के वक्तों में नमाज अदा करो। अरे हम सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई नमाज की बात बोलता है हमें खुश होना चाहिए कि जब जब कोई नमाज की बात बोलेगा हमको फौरन इमाम हुसैन की याद आएगी कि करबला के मैदान में नमाज में सर दे दिया है, या खुश होगी कि नहीं। लेकिन फिर हम कैसे सुन्नी है, नमाज के बाद कोई बोलता है, कुछ चिड़ पैदा हो जाती है। कल कादिर शाही मस्जिद में सैयद भाई गुलजार भाई थे, एक बहस हो गई। वहां पर एक आदमी था, हम नाम नहीं बोलेंगे, कि मेरे पीर मुर्शिद ने बताया है, हबीब मिल्लत ने बताया है, अगर कोई सुन्नी अपने आप को बोलता है और बरेली शरीफ का तस्करा कर दो उसके सामने, और अगर उसको जलन है तो समझो सुन्नियत में शक है। बात आप लोग सुने कि नहीं? तो बड़े बड़े आलिम से अगर नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा। अगर कोई सुन्नी अपने आप को बोलता है, बरेली का नारा लगा के देखिए, अगर उसका चेहरा खिल जाता है तो समझ लीजिए आला का दीवाना है, अगर चिढ़ जाता है तो समझ लो सुन्नी में शक है, वो दो गल्लापन है। तो वो आदमी था, चिढ़ गया, हमने बोला चिढ़ गया, तो अब उसका टकराव होगी। टकराव हो जब होगा, मैं बात देखो भाई, फितना में फितना फैलाने वाला यहाँ एक है। हम कहते तुम कैसे सुन्नी हो, कैसे पीर का मानने वाला? भाई सिलसिला तो एक ही है, पीर अलग हो सकता है ना, नहीं, हाँ ये गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसको बहुत जोर लगा, बहुत जोर लगा। आला का मान जिसको पड़ता है ना, बहुत जोर लगता है। अपने आप को सुन्नी बोलता है, आला का नाम में चिढ़ है। तो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते आप ऐसा ना करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के कुत्ते हैं, अल्लाह के आला के मानने वाले हम हैं। जब कोई पीर हो, कोई मजलिस हो, आला हज़रत जब जब नारा होता है हम सब का दिल बाग बाग हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आज सुन्नियत को बचाने वाला अगर कोई शख्स है तो इमाम अहमद रजा है। सुन्नियत में कीड़े आ गए थे, सुन्नियत में पुकार लग गया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को इतना फैलाया, इतना फैलाया, एक ही वक्त में 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। जब आला हज़रत ने देखा छानबीन करके कि कीड़े लग गए मुसलमानों के अंदर, आला हज़रत नबी की इश्क में डूब के दवा स्प्रे करके इतना मार मारा है, सबको अलग कर दिया और आशिक नबी को एक जाल में फेंक दिया। मेरे भाई, अगर अपने आप को अगर सुन्नी कहलाते हो तो फकर के साथ ये बोलो कि हम बरेली वाले हैं। वो चाहे रिजवानी हो, कमरी हो, ताजुश शरिया हो, मुजाहिद मिल्लत हो, हबीबी हो, कोई भी हो, चिश्ती हो, अगर अपने आप को ये घमंड फकर करता है कि हम बरेली वाले हैं तो समझ लो आला हज़रत सरकार तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ताजुश शरिया, नारे तकबीर। तो हज़रात मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आला का जिक्र हो रहा है, समझो ताजुश शरिया की तारीफ हो रही है। ये सुन्नी की पहचान है कि हम रसूलुल्लाह की तारीफ करते हैं। हम अगर गौसुल आजम का जिक्र करेंगे तो रसूलुल्लाह की हकीकत में तारीफ हो रही है। रसूलुल्लाह की हम नात पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह का मौजज़ा बयान करेंगे, रसूल की शान में अगर कोई पैगाम सुनाएंगे तो समझो हकीकत में तारीफ खुदा की हो रही है। अगर हम ताजुश शरिया की तारीफ कर रही हैं तो उनके दादा आला की तारीफ हो रही है। आला की तारीफ कर रहे हैं तो समझो उनके पोते ताजुश शरिया की तारीफ हो रही है। ताजुश शरिया का बहुत सारी करामतें हैं मेरे भाई। हमारी जिंदगी कट सकती है, ताजुश शरिया की शान कभी कट नहीं सकती है, क़यामत तक बाकी रहेगी। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फज़कुरूनी
वज़कुरुकुम, जो बंदा मुझे याद करता है हम उसको याद करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाता है तो उसकी जिंदगी खुदा की बारगाह में बका हो जाती है, या उसकी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में बाकी हो जाती है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि फानी जिंदगी दो, खुदा की बारगाह में बका की जिंदगी लो। सबसे खुदा की बारगाह में कीमती सौदा, अच्छा सौदा यही सौदा है कि फानी जिंदगी खुदा की मोहब्बत में लुटा दो और बका की जिंदगी खुदा से ले लो। ये सारे औलिया किराम ने ऐसा किया। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी में 22 घंटा अल्लाह की इबादत में गुजारा करता था। कितने? 22 घंटे। और 2 घंटा मैं बाल बच्चा बीवी के लिए दुनियादारी कर रखता था। तो अब सोचो क्या नबी के आशिक थे। और हम मस्जिद में 15 मिनट जाते हैं तो घड़ी का कांटा को देखते हैं, घड़ी का कांटा को देखते हैं। तो समझो अब एक बात देखो, आला हज़रत की